علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ انسان کی قیمت اس کی زبان سے نہیں بلکہ اس کے عمل سے پہچانی جاتی ہے۔ خاموشی اکثر ایسی بات سے بہتر ہوتی ہے جو بعد میں پچھتاوا بن جائے۔ صبر ایسی قوت ہے جو مشکل وقت کو بھی گزرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو پہچان لے وہ اپنے رب کی پہچان کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ غصہ عقل کا دشمن ہے، غصے میں لیا گیا فیصلہ اکثر پچھتاوا دیتا ہے۔ سچ بولنا کبھی کبھی مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن جھوٹ کی زندگی سے بہتر ہے۔ دوست وہ ہے جو تمہاری غلطی پر تمہیں تنبیہ کرے، نہ کہ وہ جو ہر بات پر تمہاری تعریف کرے۔ انسان کی اصلی دولت اس کا اچھا کردار ہے۔ دل کو حسد سے پاک رکھو کیونکہ حسد سب سے پہلے اپنے ہی دل کو جلاتا ہے۔ جو وقت گزر گیا اسے واپس لانے کی کوشش سے بہتر ہے کہ آنے والے وقت کو بہتر بنایا جائے۔ عقلمند وہ ہے جو اپنی غلطی سے سیکھے اور دوسروں کی غلطی سے بھی سبق حاصل کرے۔ تکبر انسان کو بلندی سے نہیں تنہائی سے ملاتا ہے۔ نیک عمل چھوٹا ہو یا بڑا اس کی قیمت نیت سے ہوتی ہے۔ کسی کمزور کو ذلیل کرنا قوت نہیں کمزوری کی علامت ہے۔ جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا رہتا ہے وہ اپنے عیب بھول جاتا ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے، ہر آسانی کے پیچھے شکر اور ہر مشکل کے پیچھے صبر ہونا چاہیے۔ وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اسے نہ کاٹو تو وہ تمہیں کاٹ دیتا ہے۔ عقلمند اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے، جاہل اپنی زبان کا غلام ہوتا ہے۔ نیک صحبت انسان کے کردار کو بلند کرتی ہے، برے دوست سے تنہائی بہتر ہے۔ انسان کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اس کے پاس اختیار ہو۔ معافی دینا اکثر انتقام لینے سے زیادہ بڑی بہادری ہے۔ جو اپنے نفس کو قابو میں کر لیتا ہے وہ اپنے سب سے بڑے دشمن پر فتح پا لیتا ہے۔ دنیا کی محبت دل کو غافل کرتی ہے جبکہ آخرت کی فکر انسان کو ہوشیار کرتی ہے۔ کسی کی عزت اس کی غیر موجودگی میں کرنا اصل اخلاق ہے۔ اچھی بات کو صرف اس لیے مت چھوڑو کہ کہنے والا تمہارا پسندیدہ شخص نہیں۔ جو شخص وعدہ کرتا ہے اسے وعدہ نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کا سب سے بڑا امتحان اس کی خواہشات ہیں۔ رزق کے لیے محنت کرو اور نتیجے کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا وہ اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتا۔ علم حاصل کرنا انسان کو روشنی دیتا ہے، جہالت انسان کو اس چیز کا دشمن بنا دیتی ہے جسے وہ سمجھتا نہیں۔ سچائی کو اکثر کم لوگ پسند کرتے ہیں مگر آخر میں سچ ہی قائم رہتا ہے۔ اچھا کردار وہ دولت ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا نام زندہ رکھتی ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا دینا صرف اس کی بھوک نہیں مٹاتا بلکہ انسانیت کو زندہ رکھتا ہے۔ غریب کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک اس کا مقام تم سے بلند ہو۔ مصیبت میں گھبرانا مشکل کو کم نہیں کرتا بلکہ دل کو اور کمزور کرتا ہے۔ امید مت چھوڑو، اندھیری رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے۔ دعا اور محنت کو ایک دوسرے کا بدل نہ سمجھو، دونوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا شکریہ ادا کرو۔ کسی پر ظلم کرنا اپنے لیے ظلم کا دروازہ کھولنا ہے۔ عدل وہ بنیاد ہے جس پر مضبوط معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ حق کی راہ پر چلنے والے کو کبھی کبھی تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر بات کا جواب دینا عقلمندی نہیں، کچھ باتیں نظر انداز کر دینا بھی حکمت ہے۔ کم بولنا اور زیادہ عمل کرنا انسان کے کردار کو مضبوط کرتا ہے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کی قدر کرتا ہے وہ اپنی اصل نعمت کی قدر کرتا ہے۔ دل کی صفائی چہرے کی خوبصورتی سے زیادہ قیمتی ہے۔ کسی کی خوشی کا سبب بننا بھی ایک بڑی نیکی ہے۔ اپنی زندگی کو دوسروں سے مقابلہ کرنے میں ضائع نہ کرو۔ جو تمہارے پاس ہے اس پر شکر کرو اور جو نہیں ہے اس کے لیے حلال کوشش کرو۔ حسد انسان کو دوسروں کی خوشی سے پریشان کرتا ہے۔ قناعت دل کو امیر بناتی ہے۔ لالچ انسان کو موجود نعمتوں سے محروم محسوس کراتا ہے۔ عقلمند اپنے لفظوں کو تول کر بولتا ہے۔ ایک لفظ دل بنا بھی سکتا ہے اور توڑ بھی سکتا ہے۔ کسی کے دل کو تکلیف دینے سے پہلے سوچو کہ اگر وہی بات تمہارے ساتھ ہو تو تم پر کیا گزرے گی۔ نیک نیت کے ساتھ کی گئی محنت کبھی بیکار نہیں جاتی۔ مصیبت انسان کو اس کی اصل طاقت سے واقف کراتی ہے۔ جو شخص مشکل وقت میں صبر کرتا ہے وہ آسانی کے وقت شکر کرنا بھی سیکھ لیتا ہے۔ اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ بدلہ لینے سے پہلے اپنے دل کو دیکھو، کبھی کبھی معافی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ جو تمہیں غلط راستہ دکھائے اس کی بات صرف اس لیے نہ مانو کہ وہ تمہارا دوست ہے۔ عقلمند وہ ہے جو اپنی کمزوری کو پہچان کر اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ علم بنا عمل کے اس چراغ کی طرح ہے جو دوسروں کو روشنی دے مگر اپنے مالک کو راستہ نہ دکھائے۔ عمل بنا اخلاص کے صرف ظاہری شک رہ جاتا ہے۔ اخلاص دل کی وہ روشنی ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ اپنی تعریف سن کر متکبر نہ ہو اور تنقید سن کر ٹوٹ نہ جاؤ۔ تنقید میں اگر سچ ہو تو اسے اصلاح کا ذریعہ بناؤ۔ جو تمہاری غلطی بتائے ضروری نہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہو۔ جو تمہاری ہر بات کی تعریف کرے ضروری نہیں کہ وہ تمہارا دوست ہو۔ دوستی کا اصل امتحان مشکل وقت میں ہوتا ہے۔ امیر ہونا اور دل کا امیر ہونا دو الگ چیزیں ہیں۔
दिल की गुर्बत इंसान को दुनिया की बहुत सी दौलत के बावजूद फ़कीर रखती है। सब्र का फल अक्सर उस वक्त मिलता है जब इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं। अल्लाह की रहमत से मायूस होना मोमिन के लिए मुनासिब नहीं। हर मुश्किल अपने अंदर किसी न किसी सबक को छुपाए होती है। अपनी गलती को तस्लीम करना शर्म की बात नहीं, गलती पर जिद करना नुकसान है। झूठ को बचाने के लिए बहुत से झूठ बोलने पड़ते हैं, जबकि सच को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। अमानत में खयानत इंसान के किरदार को गिरा देती है। वक्त सबको एक जैसा मिलता है, फ़र्क सिर्फ उसके इस्तेमाल का होता है। जवानी को गफलत में ज़ाया न करो, बुढ़ापे से पहले अपनी ज़िंदगी की कद्र करो। सेहत एक बड़ी नेमत है, इसकी कद्र उस वक्त न करो जब वह चली जाए। अपनी ज़बान को गीबत से बचाओ, किसी की पीठ पीछे बुराई करना अपने किरदार को कमज़ोर करता है। अगर किसी की बुराई तुम्हारे पास पहुंचाई जाए तो फ़ौरन यकीन न करो। खबर की तस्दीक करो और फिर फैसला करो। शक को यकीन का दर्जा देना इंसान को बहुत से जुल्म तक ले जा सकता है। इंसाफ में अपने और गैर का फ़र्क नहीं होना चाहिए। हक को पहचानो, फिर लोगों को हक के ज़रिए पहचानो। जिस दिल में रहमत होती है वह दूसरों के दर्द को समझता है। कमज़ोर पर रहम और जालिम के सामने हक की बात करना अखलाक का हिस्सा है। बहादुरी सिर्फ जंग के मैदान में नहीं, अपनी ख्वाहिश को रोकना भी बहादुरी है। अपने नफ्स से मुकाबला सबसे मुश्किल मुकाबला है। जो अपने गुस्से को रोक लेता है वह अपने फैसलों को बेहतर बना लेता है। खामोशी को समझने वाला अक्सर अल्फाज के पीछे छुपी हकीकत को समझ लेता है। हर सवाल का जवाब फ़ौरन देना ज़रूरी नहीं। पहले सोचो फिर बोलो, पहले समझो फिर फैसला करो। ज़िंदगी में जो चीज़ तुम्हारे काबू में है उस पर मेहनत करो और जो काबू में नहीं उस पर बेजा फिक्र न करो। अल्लाह पर तवक्कुल का मतलब मेहनत छोड़ देना नहीं। मेहनत करने वाला इंसान अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, नीयत और तरीका उसकी कीमत बढ़ाते हैं। किसी का हक ना मारो, चाहे तुम्हारे लिए उसका नुकसान ही क्यों ना हो। इंसाफ कभी कभी अपने खिलाफ फैसला करने का नाम भी है। अक्लमंद वह है जो अंजाम को देखकर कदम उठाता है। हर चमकती हुई चीज़ कीमती नहीं होती, हर मीठी बात सच नहीं होती, हर सख्त बात नफ़रत नहीं होती, कभी नसीहत भी सख्त होती है। अपने वक्त को इल्म, इबादत और नेक अमल में लगाओ। दिल को दुनिया का गुलाम ना बनाओ। दुनिया तुम्हारी ज़रूरत हो सकती है, तुम्हारी मंजिल नहीं। आखिरत की तैयारी को कल पर मत छोड़ो। इंसान का असल सफ़र उसकी रूह का सफ़र है। अपने अमल का हिसाब खुद लेना सीखो। जो रोज़ अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है वह धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी बदल देता है। दूसरों को बदलने से पहले अपने आप को बदलना सीखो। अपने लफ्ज़ों से किसी को उम्मीद दो तो उसे धोखा न दो। किसी के भरोसे को तोड़ना आसान है, दोबारा हासिल करना मुश्किल। वफ़ा सिर्फ अल्फाज नहीं, अमल का नाम है। दोस्त की खता को माफ़ करना दोस्ती को मजबूत करता है, लेकिन जुल्म को दोस्ती के नाम पर कबूल करना हिकमत नहीं। दिल में कीना न रखो, कीना इंसान को अंदर से खोखला करता है। अपने दिल को माफ़ करने की आदत दो। जो शख्स दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है वह अपने लिए भी मोहब्बत पैदा करता है। मुस्कुराहट भी सदके जैसी नेक रविश हो सकती है। किसी परेशान इंसान को तसल्ली देना भी इंसानियत है। किसी यतीम, मिस्कीन और ज़रूरतमंद को हकीर न समझो। इंसान की इज्जत उसकी दौलत से नहीं होती, असल बुलंदी किरदार की बुलंदी है। जिस शख्स के पास इख्तियार आए और वह इंसाफ करे वह काबिले इज्जत है। हुकूमत या जिम्मेदारी अमानत है, माल एक गनीमत नहीं। जिम्मेदार शख्स को अपने फैसलों के अंजाम का सोचना चाहिए। अवाम के दर्द को समझना हुक्मरान की जिम्मेदारी है। जुल्म का साथ देना भी जुल्म में हिस्सा है। मज़लूम की मदद करना इंसानी फ़र्ज़ है। हक़ की हिमायत में तन्हाई से न डरो। लोगों की बातों से ज़्यादा अपने ज़मीर की आवाज़ सुनो। ज़मीर को ज़िंदा रखने के लिए सच्चाई ज़रूरी है। अक्लमंद आदमी हर बात को फ़ौरन कबूल नहीं करता, पहले उसे समझता है। हर मशवरा काबिल अमल नहीं होता, मशवरा अहले अक्ल से करो। अपने से बेहतर इल्म रखने वाले से सीखने में शर्म न करो। तालिबे इल्म का सबसे बड़ा ज़ेवर अदब है। इल्म के साथ अदब न हो तो इल्म का फ़ायदा कम हो जाता है। उस्ताद की इज़्ज़त इल्म की इज़्ज़त का हिस्सा है। बच्चों को सिर्फ अल्फाज नहीं, अपना किरदार भी तालीम दो। नसीहत वह ज़्यादा असर करती है जो अमल के ज़रिए दी जाए। जो खुद नहीं करता उसकी नसीहत कमज़ोर हो जाती है। अपने दिल को अल्लाह की याद से ज़िंदा रखो। इबादत में सिर्फ ज़ाहिर नहीं, दिल की हाज़िरी भी ज़रूरी है। नेक अमल को लोगों की तारीफ़ का मोहताज न बनाओ। अगर नेकी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हो तो उसकी रूह कमज़ोर हो जाती है। अपनी नीयत को बार बार परखो। जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए हो उसमें लोगों की तारीफ़ और मलामत बराबर होनी चाहिए। मुश्किल वक्त में दुआ को अपना सहारा बनाओ। आसानी के वक्त शुक्र को मत भूलो। नेमतों का शुक्र उनकी कद्र करने से होता है। जो इंसान हर वक्त शिकायत करता है वह अपनी मौजूद नेमतों को भूल जाता है। अपनी ज़िंदगी को बेमकसद न गुजारो। हर दिन अपने लिए एक बेहतर काम मुकर्रर करो। कल का इंतज़ार करते करते आज को ज़ाया न करो।
जो वक्त एक बार चला जाए वह दोबारा नहीं आता। जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ वक्त है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, वक्त दोबारा नहीं मिलता। अक्लमंद अपनी एनर्जी बेकार के झगड़ों में ज़ाया नहीं करता। हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं, कभी खामोश रहना भी अक्लमंदी होती है। किसी की इज्जत को अपनी जीत का जरिया न बनाओ। अपनी ज़बान से किसी की इज्जत न छीनो। मजाक में भी ऐसी बात न कहो जो किसी के दिल को तोड़ दे। लफ्ज़ तीर की तरह होते हैं, निकलने के बाद वापस नहीं आते। गलती के बाद माफ़ी मांगना कमज़ोरी नहीं, माफ़ी देना दिल की बुलंदी है। लेकिन बार बार होने वाले जुल्म से अपनी हिफाजत करना भी ज़रूरी है। दुनिया के इम्तिहान में सब्र और शुक्र दोनों ज़रूरी हैं। जो तुम्हें न मिले उस पर मायूस होने के बजाय जो मिला है उसकी कद्र करो। हर देर का मतलब इनकार नहीं होता। कभी अल्लाह की हिकमत हमारी समझ से बड़ी होती है। मुश्किल रास्ता अक्सर इंसान को मजबूत बनाता है। आजमाइश इंसान के अंदर छुपी हुई हिम्मत को जाहिर कर देती है। अपने मुस्तकबिल के लिए आज मेहनत करो। ख्वाब देखना अच्छा है, लेकिन ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए अमल ज़रूरी है। जो सिर्फ सोचता रहता है और अमल नहीं करता, उसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। अपनी कामयाबी पर गुरूर न करो, अपनी नाकामी पर टूट न जाओ। कामयाबी शुक्र मांगती है और नाकामी सबक। जो गिर कर उठता है वह चलना और मजबूती से सीखता है। अपनी ज़िंदगी के हर तजुर्बे से सबक हासिल करो। इंसान को अपने आप से सच बोलना सीखना चाहिए। अपनी खामियों को पहचान लेना इस्लाह का पहला कदम है। दूसरों के ऐब गिनने से पहले अपने ऐब देखो। किसी की बुराई करने से पहले सोचो कि क्या तुम उसकी जगह होते तो बेहतर होते। हर इंसान अपने अंदर एक कहानी रखता है, इसलिए किसी को फौरन जज न करो। रहम, अदल, सब्र और सच्चाई इंसानी किरदार की बुनियादी खूबियां हैं। जो इल्म हासिल करता है उसे अमल से रोशन करो। जो ताकत रखता है उसे इंसाफ के लिए इस्तेमाल करो। जो दौलत रखता है उसे ज़रूरतमंदों को याद रखना चाहिए। और सबसे बड़ी हिकमत यह है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को ऐसे अमल से भर दे जिसे देखकर उसका ज़मीर मुतमिन हो और जिससे दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे। हजरत अली से मंसूब इन हिकमत भरी बातों का असल मकसद सिर्फ इन्हें सुनना या याद करना नहीं, बल्कि इनकी रूह को अपनी ज़िंदगी में उतारना है। अगर हम सच्चाई को अपनाएं, इल्म की तलाश करें, गुस्से को काबू में रखें, मज़लूम के साथ खड़े हों, माँ बाप की इज्जत करें, वक्त की कद्र करें, अपने ऐप पहचानें और दूसरों के साथ इंसाफ और रहमत का रवैया रखें, तो ये हिकमतें हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का ज़रिया बन सकती हैं। अल्फाज तभी कीमती बनते हैं जब वे इंसान के किरदार में नज़र आएं। इसलिए हजरत अली की तरफ मंसूब हिकमत को सिर्फ सुनने के बजाय उस पर गौर करना और अपने अमल को बेहतर बनाना ही सबसे खूबसूरत तरीका है।